Today we will discuss gully control measures. Most of you are very much familiar with these measures, and some of you may be new ones. So it will be a mixed presentation. Hope you will enjoy. Let us start with the word that we are supposed to gain knowledge day by day, whether that is directly useful for us or not. What we have done. Hope you all will do much better than us. So now we will start gully control measures. First of all, the definition. I think this screen is visible to everybody. Yes, sir. Visible. Right. So simply, what is gully? Gullies are the extension of several rills in a catchment. When several rills merge at a point and the depth becomes around 30 centimeters, then the drainage are named as gully. You know the rills. The formation of rill is because of the sheet erosion in the catchment, and that erosion is caused by the rainfall, which has its intensity and energy to break down the soil surface flow. So after that, what happens? Runoff starts with some sediment, and because of the friction, some rills forms because water needs to drain from certain points. And these rills, in a due course of time, converges and forms a gully. What is the erosion process of gully? Multi-direction erosion takes place in gullies. Multi-direction means चारों तरफ से. अगर हम गली में इरोजन की बात करें तो इरोजन पीछे की तरफ भी होता है, इरोजन आगे की तरफ भी होता है, और इरोजन साइड्स में भी होता है. When water falls from some height, that energy creates turbulence in water, and because of that, undercutting process starts. Because of that undercutting, what happens? The initial point of gully fails, और उस तरह से हमारी गली जो है वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाती है. और जब फ्लो आपका गली के अंदर जाता है, तो चूंकि गलीज में जनरली स्लोप्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बेड है गली का, उसको भी वो इरोड करता हुआ चला जाता है. और जब उसमें पानी की क्वांटिटी सफिशिएंट हो जाती है, तो जो साइड बैंक्स है वहां भी अंडर कटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इस प्रोसेस में गली आपकी डीपन होती चली जाती है, वाइडन होती चली जाती है, और रिवर्स एक्सटेंड होती चली जाती है. इस तरह से अल्टीमेटली जो गली है वो आपकी रिज तक पहुंच जाती है. So this is the process. Until unless we don't know the process of erosion, we are not in position to treat the gully. Next. Data.
So classification of gullies. A simple classification. These are normally linear. Length of the gullies are more than its width. They may be straight or zigzag. When surface is a little bit harder, they go straight, and when it is sandy, it may go zigzag also. Type of gullies. Small gullies. Gullies having depth 1 meter or below 1 meter, and the drainage area less than 2 hectares. Medium gullies are having depth 1 to 5 meters, and the drainage area is 2 to 20 hectares. Large gullies have more than 5 meter depth and even up to 20 meters, and the drainage area is more than 20 hectares. Next. So next is so gullies may be continuous or discontinuous. When gully forms second order streams, you know, when two streams merge at a point, then the next gully is named as second order stream. They are known as continuous. When gully is formed due to some landslide or they do not join further any stream, so such gullies are named as independent gullies. They are of single order only. The shape of the gullies are normally having three shapes. One is the U shape. Why U shape occurs? The resistance to erosion at the topsoil and the bed or the subsurface strata is more or less same. Then U shape is formed. When topsoil in comparison to the subsoil strata is lesser resistant, then it becomes V shape. माने जब हमारी टॉप सरफेस है वो आपकी इरोजन को रेजिस्टेंस कम दे पाती है, माने बहुत इरोडेबल है, और जो सब सरफेस स्ट्रक्चर है लिटिल बिट हार्ड है, तो तब आपकी वी शेप आती है और सेम कंडीशन में ट्रेपेजोइडल शेप धीरे धीरे बन जाती है. Measures. We can treat gullies by two measures: indirect methods and direct methods. Indirect methods में हम जो गली का कैचमेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि जो रन ऑफ है उसको रेगुलेट किया जा सके और उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जितना रन ऑफ कम होगा तो उसको कम ड्रेनेज की जरूरत होगी, तो गली के अंदर फ्लो कम होगा और उसमें इरोजन कम होगा. And second one, the diversion of surface water from the gully area. इस मेथड में क्या करते हैं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपका ज्यादा रन ऑफ का प्रेशर है तो उस रन ऑफ को हम डाइवर्जन ड्रेन बनाकर डाइवर्ट कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेफ प्लेसेस में. ये जो डाइवर्जन ड्रेन है इसको ध्यान रखना चाहिए कि इसका बेड स्लोप जो है 0.5% होना चाहिए. मैक्सिमम अगर कोई ऐसी अर्जेंट प्रॉब्लम है तो इसको 2% तक रखना चाहिए, बिकॉज द फ्लो वेलोसिटी शुड बी नॉन इरोसिव इन डाइवर्जन ड्रेन्स, अदरवाइज it will again create a problem to us. The direct methods is stabilization of gullies by structural measures. They may be temporary, they may be permanent. So normally in soil and water conservation we use temporary structures until unless it is not necessary, because permanent structures are little bit difficult to design and they are costly one also and they need maintenance also. So the temporary structures are just like will check them, earthen plugs, loose board will check them,
and the Gabbian structures. When we talk about the permanent structure, तो इसमें आता है हमारा जैसा मेसनरी स्ट्रक्चर हो गया, ड्रॉप स्पिलवे हो गया, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे हो गया, शूट स्पिलवे हो गया, ये और एंड परमानेंट अर्दन चेक डैम हो गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमारे ये परमानेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए थोड़ा कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है और इनका मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। हालांकि जो ड्रॉप स्पिलवे है हम उसको गेबियन की मदद से भी बना सकते हैं एंड दैट आल्सो नीड लिटिल बिट मेंटेनेंस। So next is design criteria. A purpose of check dams in Gully controls to eliminate grade. Means जो bed slope होता है गली का, suppose 15% है bed slope गली का, तो 15% slope के ऊपर flow velocity naturally ज्यादा होगी। तो अगर हम 15% से इसको 10% करते हैं, तो हमारी flow velocity कम हो जाएगी। फ्लो वेलोसिटी कम हो जाने से क्या होगा, जो इरोजन प्रोसेस है, जो इरोडेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। सो जो हमारा मेन उद्देश्य है वो एक उद्देश्य तो ये है कि हम उसके अंदर जो ग्रेड है उसको कम कर सकें। एंड सेकेंड इज द चैनलाइजेशन ऑफ फ्लो। नॉर्मली चैनलाइजेशन ऑफ फ्लो इज डन इन सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम्स बिकॉज दे आर लिटिल बिट वाइडर आल्सो। सो सिंगल स्ट्रीम में हमको जो सिंगल ऑर्डर स्ट्रीम है उसमें हम ग्रेड को स्टेबलाइज कर सकते हैं और उसके अंदर वेजिटेशन ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर्स, नाउ वी विल स्टार्ट सम स्ट्रक्चर्स। ब्रशवुड चेक डैम। ब्रशवुड चेक डैम्स आर सो सिंपल। Normally up to 12% of slope and up to a depth of 2 meters. In a gully, we use these structures. Normally, these structures are used in single order stream. That is from where the stream is started. The gully is started. In this, what we do, we use some wooden poles having a diameter of 10 to 15 centimeters, and the species may be used which are self-sprouting. That will be much better, or otherwise whatever material is available nearby, we can use that one. So the length of the pole should be 1.5 to 2 meters. And we can dug 60 to 75 centimeter deep, a 15 centimeter dia hole. In that hole, we can put these poles. If the poles are not self-sprouting, then we are supposed to take some treatment, just like clear something, or we can put some pole tar just to increase the life of that pole. Otherwise, some white ants, etc., may damage your pole. So the length of the pole should be 1.5 to 2 meters. And normally, it's 30% should be put inside the dug holes. And the distance between two poles should not be more than 0.9 to 1 meter. We can adjust 90 centimeter or 1 meter. So in that case, what will happen? The bush, what we are putting inside, will not move away. So what we can do? We can put some vegetation in a manner, interwoven manner. Means a one pole inside, one pole outside. We can put the vegetation. You
you can see there, this is a symbolic figure. In this, you can see that one pole is inside and one pole is outside that horizontal line. Horizontal line has been shown. There is nothing. These are vegetation. For the sake of understanding, we have put in this manner. And the vegetation which we are putting inside should be bind up. उसको बांध देना जरूरी है. इस केस में हमारी वेजिटेशन बन गई, जो हमारे पोल्स हैं इंटरवून होने के कारण वो बन गए. तो ये स्ट्रक्चर जो है अब हमारा एक पूरी यूनिट के रूप में काम करता है. एंड रिमेंबर, हमको इस स्ट्रक्चर के डाउन स्ट्रीम में अपरन देनी है और अपरन भी वेजिटेशन की होगी. उस वेजिटेशन को भी हमको लोहे के तार से या रस्सी से बांध देना है. इवन हम पैकिंग भी कर सकते हैं, वुडन पैकिंग भी कर सकते हैं ताकि वो वेजिटेशन भागे. एंड रिमेंबर, व्हेन वी पुट एनी स्ट्रक्चर इन a stream, at least 30 centimeter topsoil should be removed ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे, उसके नीचे से जमीन मिट्टी ना खींचे. तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं. बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हाट वी डोंट डू इन फील्ड, हम स्पिलवे नहीं देते. हम समझते हैं कि वाटर कमिंग फ्रॉम अप स्ट्रीम will go to the downstream through the voids of bushes. But if there is some sediment, so within a short period of time, what will happen? वो sediments जो है उन bushes के अंदर जम जाएंगे और it will work as a impermeable structure, or you may say partly permeable structure. तो अगर flow quantity ज्यादा है तो वो flow इसको ऊपर से निकल सकता है. तो इससे पहले कि वो कोई डैमेज पहुंचाए स्ट्रक्चर को, we should provide a spillway. And you know spillway, how you can design the length of the spillway, the height of the spillway. Remember, length of the spillway, you are supposed to select, suppose 5 meters is the width of the gully at top. So you can take 2 meter length, 3 meter length, 4 meter length. You can take anything. Depending upon the quantum of the peak discharge, you are supposed to take that. If this length of the spillway is more, what may happen? The banks उनको ये harm कर सकते हैं, उनको cut कर सकते हैं, erosion हो सकता है. So comparatively, flow हमारा center में जाना चाहिए. तो हमारी जो length है वो restrict होनी चाहिए, at least 1 meter from each side in such cases. So if 5 meter is the top width of this gully, so we can take L length of spillway as a 3 meter. Next. Now the approach should be nearly 1.5 times to the crest height. Earthen plugs. Earthen plugs are very simple and easily they may be constructed. These structures should be used in first order stream and in the upper reaches only, because there the drainage area is lesser and hence the runoff or peak discharge is lesser. So if bed slope is less than 10%, then these structures are reliable. Depth of gully may be up to 3 meters, no problem. Top width of this gully, this embankment should be kept minimum 0.6
meter top width. And what about the bottom width? The slope at upstream side, slope at downstream side. In earthen plugs or earthen embankments, normally what we do, the good slope, that is 1:3. Normally we do this slope at upper side. But here the flow is lesser. What we can do, we can put 1:2 because there is no any wave action and the quantum of water is less. 1:2 will bear the pressure. The downstream may be kept up to 1:3. So using this value, we can calculate the bottom width. Suppose our structure is 1 meter high. So the base at one side will be 2 meter and in downstream it will be 3 meter. 3 plus 2 is 5. The top width is 60 centimeter, means our base width will be 5.6 meter. One thing is important, we can put some stone pitching up to FSL flood level, flood supply level. We are at upstream side or full supply level. Side spillway must be given as emergency spillway. कोई भी structure हो, as I told you, we are supposed to provide the spillway. So earthen embankment, because this is a temporary structure, so what we can do, we can put a channel one side of the bank and we can put some stones there and grass sodding may be done. So after some time, with a proper compaction, what will happen? This will stabilize and water can flow through it. No erosion will take place. And you can design it with a formula Q is equal to 1.84 and H is equal to about 3.5. Some of us may confuse that Q may be 1.711 LS is equal to about 35 divided by 2. Hardly matters, it will not impact your structure. 5 to 10 centimeter will be there difference. So those structures which are little bit of permeable nature, in those structures we can take the value 1.711 instead of 1.84. And the peak discharge may be calculated with the rational formula CIA upon 360, where remember I is the intensity. This is calculated based on the time of concentration. Normal intensity of rainfall may be 60 mm per hour, maybe 100 mm per hour. But when we calculate the intensity for time of concentration, it may reach 120, 150 also. So for calculating peak discharge, it is essential to calculate the intensity for time of concentration. And when we do any earthen plug or any earthen embankment, we are supposed to provide impervious key. It is foundation. It will prevent water to seep through the base. If there is a scope of any seepage through base, your structure may fail. Mostly piping may happen there. So a impervious type of key should be provided there. Next. And again, we are supposed to provide some apparel. Now the loose boulder check dam. It's a very simple structure, but we should know some important specification should follow. Otherwise, these structures may fail and they may not work as we want.
These structures may be constructed when the length of gully or channel is not more than 100 meters and gully catchment is less than or equal to 2 hectares. These dams are used in all regions. देखिए यहाँ क्या हुआ है, हमारी गली सपोज 300 मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है या 1 किलोमीटर लंबी है, तो जो अपर पोर्शन उसका 100 मीटर है, in that 100 meter we can take these structures. Total length of the gully should not be more than 100 meters, means these structures are supposed to put within 100 meters of the gully at upper reaches. And like other embankment, the top width of these stone wall should be 0.5 meter to 0.75 meter. Side slope at upstream 1:1, downstream 1:3. जो इसकी टॉप विड्थ है, जिसको हम ऊपर से देखते हैं, जो ऊपर से चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो साइड स्लोप्स है, उन साइड स्लोप को हम 1:1, माने अगर 1 मीटर स्ट्रक्चर की हाइट है तो 1 मीटर चौड़ा कर सकते हैं नीचे से, और डाउन स्ट्रीम पे 1:3 ले सकते हैं। यहाँ कुछ मतभेद हो सकते हैं कि हम दोनों तरफ 1:2 ले सकते हैं या 1:1 ले सकते हैं। Yes, you can take, no problem. But remember, you are supposed to calculate the peak discharge. अगर peak discharge आपका बहुत कम है तो आप स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से स्लोप को आप 1:1 से लेकर 1:3 आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम whatever you can take. But अगर peak discharge little bit more, आपका जो लैंड यूज है कैचमेंट में वो सपोज इस तरह का है, बैरन है, तो रन ऑफ ज्यादा जनरेट करता है, तो उस केस में इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डाउन स्ट्रीम में हम 1:3 रख सकते हैं, अप स्ट्रीम में हम 1:3 नहीं रखना पसंद करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमारे स्टोन है, जब हम स्टोन को ऊपर रखते हैं, उनके बीच में कुछ वॉइड्स हो जाते हैं, कुछ छोटे वॉइड्स हैं, कुछ बड़े वॉइड्स हैं, अनइवन हो सकते हैं। सपोज पीछे आपका पानी आ रहा है और पानी की क्वांटिटी कम है, तो जब वो बड़े वॉइड से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, जब वो छोटे वॉइड से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इस केस में जो हमारे वॉइड्स है, दे विल वर्क एज ए पाइपिंग। तो अगर उस प्रेशर को ब्रेक करना है तो हमको इस स्ट्रक्चर की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो विड्थ हमारी कम है डाउन स्ट्रीम में, तो वो पाइपिंग क्या कर सकती है? इरोज कर सकती है, इरोड कर सकती है, इरोजन कर सकती है। तो नॉर्मली 1:3 का डाउन स्ट्रीम स्लोप इसीलिए दिया जाता है ताकि पाइपिंग जैसी कोई भी दुर्घटना ना हो। जब पानी सीप होकर बाहर निकले तो ये मिनिमम एनर्जी के साथ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि ये लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर, इनकी फाउंडेशन का कोई रिलेवेंस नहीं है, हमको टॉप सॉइल रिमूव करनी है, और टॉप सॉइल रिमूव करने के बाद हम 50 सेंटीमीटर डेप्थ तक जा सकते हैं, जहां कंपैरेटिवली हमारा स्टेटा हार्ड। दूसरे जो हमारे बैंक्स हैं, जो किनारे हैं हमारी गली के, उन किनारों के अंदर 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक हमको एंकरिंग कर देनी चाहिए, ताकि साइड से पानी हमारा न निकल पाए। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो देयर विल बी सफिशिएंट गैप इन बिटवीन द वॉल एंड द स्टोन वॉल, दोनों सरफेस में गैप होगा और वहां से आपका पाइपिंग एक्शन शुरू हो जाएगा। उस कारण आपके जो बैंक्स हैं वो इरोड होना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए एंकरिंग जरूर देनी चाहिए सभी स्ट्रक्चर्स। एज यूजुअल पीक डिस्चार्ज हम CIA/360 से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे द इंटेंसिटी इज फॉर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए वो पोलर स्टोन्स की? इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शुड बी वर्टिकल इंटरवल अपॉन स्लोप इन परसेंट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर उस डिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं। ये ध्यान दें जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस में बेस वेट हम स्ट्रक्चर की ऐड कर लेंगे। सपोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी 5 मीटर आती है और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी बेस वेट 1 मीटर है, तो हम अगली टो से 6 मीटर बाद स्टार्ट करेंगे अगला स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स में भी हम F1 जरूर देंगे। F1 का मानक वही रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ द क्रेस्ट हाइट, यानी कि जो हमारी स्पिलवे की हाइट है बेड से, सपोज वो 1 मीटर है, तो हमारी F1 की चौड़ाई 1.5 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गेबियन चेक डैम्स। गेबियन चेक डैम्स हम हिली रीजन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। गेबियन चेक डैम जैसे आप सब जानते हैं कि लूज बोल्डर स्टोन्स की जो हमने पैकिंग की है, जो उसकी मशीनरी हमने की है विदाउट एनी सीमेंट मोटर, वही हमको पैकिंग करनी होती है एक सीमेंट के एक GI वायर के मैश में, केज में। ये जो केज है, ये केज हमारा GI वायर का बनाया जाता है, जिसका नॉर्मली गेज हम 10 रखते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज 10 मीन्स अराउंड 3 मिलीमीटर्स ऑफ डाया। नॉर्मली कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में 12 mm भी रख देते हैं, और कुछ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, वो 8 भी रखते हैं। 10 जो गेज है वो दैट इज परफेक्ट, क्योंकि इस गेज के वायर में जो नॉट्स है वायर के अंदर वो बहुत मजबूती के साथ बन सकते हैं। सपोज आपका स्ट्रक्चर फील्ड हो गया, तो 10 गेज का जो आपका वायर है, इट इज सफिशिएंट टू विदाउट दैट प्रेशर। 12 गेज का ब्रेक होने की संभावना ज्यादा है। जो मैश का साइज होता है नॉर्मली हम 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर रखते हैं, और जो उसके अंदर पत्थर रखते हैं वो 15 सेंटीमीटर से बड़े साइज के रखते हैं, ताकि वो पत्थर उन मैश साइज के बाहर ना निकल सके। सो नॉर्मली 8 इंच से 9 इंच का पत्थर का दाया होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये केज बनाई जाती है, आप सभी लोग परिचित होंगे इस केज से, आप लोगों ने फील्ड में भी देखा होगा। मैं ये चित्र नहीं डाल पाया, बट अगर कुछ लोग जो नए हैं, अगर उनको इसमें कंफ्यूजन है, सो दे मे कॉन्टेक्ट मी और आइदर बाय फोन और बाय email. I will give all the information and I will tell how we can prepare those cases also. हमको ध्यान रखना है कि जब हम उस केस को रखें तो कम से कम टॉप से सोयल को रिमूव कर, और जो प्रॉपर फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को 50 to 1 मीटर डेप्थ तक हम जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। छोटी गली है, सो वी कैन गो अप टू 50 to 60 सेंटीमीटर डीपर। बॉटम विड्थ इस स्ट्रक्चर की 0.67 टाइम्स ऑफ द क्लियर हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज हमारी गली 2 मीटर गहरी है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2 मीटर से कम गहरा होना चाहिए, 1.75 मीटर।
1.75 मीटर में हमारा स्पिलवे की हाइट अगर 60 सेंटीमीटर है तो उस 60 सेंटीमीटर को हटा देना चाहिए, यानी कि जो हमारा नेट हाइट है, क्रेस्ट हाइट है बेड लेवल से, दैट विल रिमेन 1.15 मीटर। तो 1.15 मीटर ये हमारी क्रेस्ट हाइट होगी। अगर हमारी टॉप विड्थ स्ट्रक्चर की गेबियन में नॉर्मली 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हम नहीं रखते, नॉर्मली 1 मीटर रखते हैं, दैट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट आल्सो। तो वो जो 1.15 मीटर है, बेस विड्थ जब रखेंगे उसका 0.67 टाइम्स मींस 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.67, whatever the value is, this will be the base width. अगर ये टॉप विड्थ से कम है तो we can take as a top width also। 1 मीटर है, नीचे सपोज 0.9 आ रही है तो बेस विड्थ भी हम 1 मीटर दे देंगे। ये सब जो साइजेस हैं, जो ये फैक्टर्स हैं, दे आर नॉर्मली थंब रूल्स, क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसके हम कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। जैसे हमारा कोई भी स्ट्रक्चर स्लाइड नहीं कर देना चाहिए, माने हमने रखा, पीछे से पानी आया और स्ट्रक्चर हमारा बैक है 10 मीटर 20 मीटर आगे चला गया, या हमारा स्ट्रक्चर ओवर टर्न नहीं करना चाहिए, माने पलट गया, पानी उसके ऊपर से जैसे ही आया प्रेशर और वो पलट गया। तीसरे क्या है कि शियर में फेलियर नहीं होते। केबियन स्ट्रक्चर नॉर्मली शियर में फेल नहीं होते। शियर फेल मतलब अगर आपकी अर्थ सेटल हो गई तो वो हिस्सा दब जाएगा, दूसरा हिस्सा वहीं रहेगा, तो उस इम्बैलेंस प्रेशर की वजह से शियर फोर्स डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमारे वायर टूटने का खतरा रह सकता है। पर नॉर्मली अगर हमने फाउंडेशन प्रॉपर दी है, उस स्ट्रक्चर को हमने प्रॉपर हार्ड पाया है, तो सेटलमेंट के चांसेस नहीं होते। तो नॉर्मली ये स्ट्रक्चर शियर में फेल नहीं होते, बट हाँ स्लाइड हो सकते हैं और ओवर टर्न तो अक्सर हमने देखा है कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि हम कभी भी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करते। हम इन थंब रूल्स को मान के कि 0.67 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। नॉर्मली ये कहते हैं लोग कि सपोज अगर 1 मीटर हाइट है तो पीछे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस अगर उसके ऊपर पीछे 1 मीटर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर जो है टॉप में 0 होता है क्रेस्ट पर, और जहां नीचे बेस होता है वहां पर ये मैक्सिमम होता है, दैट इज W into H। W means the density of the water and H is the height of the structure। अगर हमारी height of the structure 1 है, तो density of water 1000 होती है, तो total pressure आएगा 1 into 1000 means 1 ton। तो ये 1 ton प्रेशर अगर हमारा बेस पर लग रहा है तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर स्लाइड हो सकता है। तो जो हमारी स्ट्रक्चर की वेट है वो 1 टन से ज्यादा होना चाहिए। पर मीटर की बात कर रहा हूँ। 1 मीटर लंबाई में हमारे स्ट्रक्चर की जो वजन है वो 1 टन से ज्यादा होना चाहिए। इसमें अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व कर दें 50%, तो हमारे स्ट्रक्चर का वेट 1.5 टन होना चाहिए अगर पीछे 1 टन का प्रेशर, तब हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, ना ओवरटर्न होगा, नहीं सॉरी स्लाइड नहीं होगा। ओवरटर्न तो हो सकता है। ओवरटर्न के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो ये WH हमारा बेस में है और ऊपर 0 है, तो एवरेज जो प्रेशर है हमारा 1/3 हाइट के ऊपर जो लगता है बेस से, दैट विल बी 1/2 WH स्क्वायर। उसके बेस पर हम देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगता है, वर्टिकल प्रेशर जो है हमारा वेट की वजह से लगता है। इनका जो रिजल्टेंट है दैट शुड गो मिडिल थर्ड ऑफ द बॉटम वेट। मिडिल थर्ड मींस
सपोज हमारी 2 मीटर का बेस विड्थ है, तो उसका मिडिल थर्ड हुआ 2 divided by 3 means 0.67. So first third 0.67, next middle third 0.67, next 0.67. So जो middle 0.67 है, इसके बीच से हमारा प्रेशर क्रॉस होना चाहिए। So इसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, अगर वहां से ये क्रॉस होता है तो उस केस में हमारा स्ट्रक्चर ओवरटर्न नहीं होगा। नंबर जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है। हमारा जो लेकुना है कि हम सम रूल के ऊपर डिजाइन कर देते हैं और हमारे स्ट्रक्चर्स नॉर्मली फेल हो जाते हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस। When we are designing these structure in a gully, hydrostatic pressure is not on supposed to account only. एक डायनेमिक फोर्स भी है जो पीछे से फ्लो आ रहा है, उसका डायनेमिक प्रेशर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्लस दैट डायनेमिक, इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करके तब हमको अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए। उस केस में कॉस्ट हमारे स्ट्रक्चर की बढ़ जाएगी, साइज और शेप बढ़ जाएगा, बट हमारा स्ट्रक्चर पीक डिस्चार्ज की स्थिति में फेल नहीं होगा। नॉर्मली टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, 10 से 15 साल के रिटर्न पीरियड के बेस पे इनको डिजाइन करते हैं। तो अभी तक जो हम गलती करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो डायनेमिक प्रेशर है वो 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कवर हो जाता है, नॉर्मली नहीं होता। इसलिए दिस इज द पॉइंट टू स्टडी एंड इवन टू रिसर्च इन लैब्स। एनीवे, स्ट्रक्चर के बाद, स्पिलवे के बाद, स्पिलवे का हमारा वही प्रोसीजर रहेगा, 1.84 LH raised to the power 3/2। उसके बाद हमारी एप्रन, तो एप्रन का फॉर्मूला वही 1.5 टाइम्स ऑफ क्रेस्ट हाइट, माने स्पिलवे की जो हाइट है और जो हमारा बेड लेवल है। सपोज इट इज 1 मीटर, तो हमारी चौड़ाई जो है वो एप्रन की 1.5 मीटर होगी अगर हमारा बेड स्लोप 15% है, और अगर हमारा बेड स्लोप 15% से ज्यादा है तो उस केस में हमारी एप्रन की विड्थ 1.75 टाइम्स होगी। यानी क्रेस्ट हाइट 1 मीटर, स्लोप 15% से कम, तो एप्रन की विड्थ होगी 1.5 मीटर। अगर स्लोप 15% से ज्यादा है तो 1.75 मीटर, और 15 सेंटीमीटर डाउन स्ट्रीम में इसको खुदाई करके बनाना चाहिए। जो इसका टॉप सरफेस है वो हमारा बेड लेवल के बराबर होना चाहिए। कई जगह हमने 25 सेंटीमीटर भी देखा है पैसे के भाव में कि चलो 25 सेंटीमीटर भी काम कर जाएगा, कुछ समय कर जाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर में एक सिंगल स्टोन आता है तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाता। तो अगर वो डबल हमारा पत्थर आ जाता है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड, अगर 2 मीटर है तो 1.75 होना चाहिए, लेकिन लेस देन बैंक। बैंक से ऊंचा हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पीछे से जो पानी आ रहा है वो बैंक को ब्रीच कर जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जरा बताना बेटे। Spacing of the structures, as earlier I told you, 2% से 5% डाउनवर्ड स्लोप रख सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा 5 मीटर
स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिस्टेंस आया, तो हम उसमें 2 से 3%, 2 से 5% तक का डाउनवर्ड स्लोप दे सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि 2% से 5% तक बहुत मिनिमम इरोजन होता है या सेडिमेंट का फ्लो जो है मिनिमम होता है। तो 5% स्लोप तक हम उसको करके उसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देन परमानेंट स्ट्रक्चर, मैसनरी स्ट्रक्चर। जो मैसनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनको बनाने के लिए हमको थोड़ा स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में shear फेलियर के पूरे चांसेस होते हैं। ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग भी हो सकती है। तो नॉर्मली लोअर रीजन में जहां फ्लो बहुत ज्यादा है, वहां इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। सामान्यतः जो डबल ऑर्डर स्टीम है, उन स्टीम में इन स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहिए। कम से कम टॉप वेट इनकी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और बॉटम वेट का भाई हम रूल, ताकि जो मैंने डिजाइन प्रोजेक्ट बताया है उस डिजाइन के हिसाब से ही रखा जाएगा जो हमने गिवन स्ट्रक्चर में देखा। स्ट्रक्चर शुड हैव एनफ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट अगेंस्ट स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग एंड शियर। यहाँ शियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर का मतलब है कि जब हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उतना ही अपथ्रस्ट जमीन के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है ऊपर की। अगर ये दोनों प्रेशर यानी कि अपथ्रस्ट को और ऊपर से जो स्ट्रक्चर का लोड है, अगर ये दोनों बराबर है तो हमारा स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर स्टेक रखा है। लेकिन अगर अपथ्रस्ट कम है, लोड हमारा ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा स्ट्रक्चर सेटल हो जाएगा, धंस जाएगा बैठ के। तो जब धंसेगा तो क्या होगा कि किसी पॉइंट पर स्ट्रेस ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पर स्ट्रेस कम होगी, और शियर की वजह से इसके किनारों में क्रैक्स आ जाएंगे। नॉर्मली क्रैक्स रिपेयर्स नहीं होती। अगर हमारा अपथ्रस्ट ज्यादा है और हमारा लोड कम है, तो उस केस में भी शियर फेलियर हो जाएगा। तो प्रॉपरली इन स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले ये सब चीजें डिजाइन करनी होती है। जो अपथ्रस्ट है उसको कम करने का क्या तरीका है, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि अरे हमारी 2 मीटर ऊंची दीवार है, उसके नीचे में क्या जरूरत है सीमेंट कंक्रीट का बेस देने की। नॉर्मली 7 to 10 सेंटीमीटर थिकनेस की हम प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग बेस में डाल देते हैं जब भी हम कोई मशीनरी वर्क करते हैं। उसमें जो रेशो होती है वो 1:5:10 होती है, मैंने 1 सीमेंट 5 मोटा रेत और 10 बजरी 12 mm से 20 mm तक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना मजबूत नहीं होता कि ये किसी भी लोगों को बर्दाश्त कर सके। फिर कुछ लोग क्या कर देते हैं ना समझे में कि इसको 1:3:6 में कर देते हैं, 1 सीमेंट 3 मोटा रेत और 6 बजरी। तो सोचते हैं कि ये मजबूत हो गया और इसके ऊपर लोड लगाते हैं, और जब ऊपर हम कोई भी सपोज कंक्रीट बीम डालते हैं या कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां रेशियो रखते हैं 1:2:4। आजकल तो 1:1.5 एंड 3 ये रेशियो रखते हैं। ये सब चीजें इसलिए है कि जो हमारा फंडामेंटल है हम उसको नहीं समझते। लेट मी टेल यू, जो हमारी सीमेंट कंक्रीट बेस में कंक्रीट होती है, दैट हैज मेजर रोल टू प्ले। अगर एक उदाहरण दूं आपको, आपने अगर कभी कुछ समय पहले रेल की पटरी देखी हो, तो जब उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, लकड़ी के स्लीपर होते हैं और उनके बीच में आपने कुछ स्टोन ब्लास्ट देखे होंगे, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के आसपास के पत्थर काट के उसमें डाल दिए जाते हैं। सो नॉर्मली देखा जाए तो दैट हैज नो यूज, उनका कोई मतलब नहीं।
बट जब ट्रेन ऊपर से जाती है तो मोमेंटम की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है और जो अपथ्रस्ट क्रिएट होती है, अगर हार्ड सरफेस हो तो हमारी ट्रेन पलट जाए। वो बैलेंस बनाने के लिए जो स्टोन है, कुछ इलास्टिसिटी हमारे लकड़ी के स्लीपर्स में होती है, वो बियर करते हैं। बाकी जो फोर्स है थ्रस्ट का, जो स्टोन ग्रिट है, उसमें जो वॉइड्स है, वो वॉइड से रिलीज होना और हमारी रेल लाइन सेफ है। सेम यही प्रिंसिपल, जब हम 1:5:10 का बेस कंक्रीट डालते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर वॉइड्स ज्यादा होने की वजह से क्या एडवांटेज होता है, जो भी अपथ्रस्ट आता है वो उन वॉइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपथ्रस्ट की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा है, तो उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो किसी भी कीमत पे हमारा स्ट्रक्चर सेटल डाउन नहीं होता या उस पर शेयर क्रैक्स नहीं आते। अगर हम 1:3:6 लगाएं तो उसमें शेयर क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये डिजाइन किया गया है कि 1:5:10, और कहीं अपरिहार्य स्थिति है तो 1:4:8, ये रेशो में हम बेस कंक्रीट जरूर डालें। जो बेस कंक्रीट की डेप्थ है, नॉर्मली हम लोग नहीं जानते कि कितनी होनी चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपने देखा हो, जब हम घरों में ब्रिक की मसंदी करते हैं तो जो नीचे का सबसे लंबा होता है कोर्स, वो सबसे चौड़ा होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा कोर्स छोटा होता चला। तो जो दोनों साइड हम छोड़ते हैं हर बदले के बाद में, वो हमारा प्रोजेक्शन होता है। वो प्रोजेक्शन, तो वो जो प्रोजेक्शन है उसके 2 टाइम्स हमारी डेप्थ ऑफ बेस कंक्रीट होनी चाहिए। जो हम बेस कंक्रीट के बाद ब्रिक वर्क करते हैं वहां हम कुछ जगह छोड़ते हैं। ये हमारी 0.775 ऑफ द डेप्थ ऑफ बेस कंक्रीट होनी चाहिए। छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में ये सब मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। बस हाँ, इतना जरूर है कि 3 इंच या 4 इंच, एज पर द सुटेबिलिटी, एज पर योर जजमेंट, 3 इंच से 4 इंच मोटी आपको बेस कंक्रीटिंग करना मस्ट है। उस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं होगा। अप्रैल एज यूजुअल 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट, यहाँ जो डिस्चार्ज है, पीक, जो स्पिलवे आप डिजाइन करेंगे, इस स्पिलवे में बिकॉज वर्ड्स नहीं है हमारे स्ट्रक्चर में, ये दैट इज ए परमेबल स्ट्रक्चर, तो यहाँ डिफाइंड आपको क्रस्ट है, तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Q इज इक्वल टू 1.711 L इंटू H⁻²। यहाँ आपको 1.84 करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कितनी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो नॉर्मली जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो डिपेंड करता है आपके गली बेड का स्लोप की कंडीशन क्या है। उतनी डेप्थ तक हमको उसको खोदना चाहिए जब तक एक हमारा हार्ड स्टेटर न मिल जाए। और अगर थोड़ा साइंटिफिक चाहे तो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू P/W 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर। यहाँ 5 एंगल ऑफ डिपोज, P bearing capacity of soil, W density of soil। ये जो 5 एंगल ऑफ डिपोज है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपका सोयल का कैरेक्टराइजेशन क्या है, किस तरह का सोयल है। सिल्ट है तो उसका साइज 0.006 mm से कम होगा। क्ले है,
सिल्ट है 0.02 तक होगा, सैंड है 2 mm तक होगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरह से एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू, अगर प्योर क्ले है तो एंगल ऑफ रिपोज 20 डिग्री के आसपास होगा। नॉर्मली अगर ये फॉर्मूला हमको कहीं यूज करना है तो नॉर्मल सॉइल के लिए हम इस फाई की वैल्यू 30 डिग्री ले सकते हैं। विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, इतना चौड़ा फाउंडेशन होना चाहिए। तो अगर हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी है उस लेंथ की, तो जो पर मीटर हमारा टोटल लोड आ रहा है, जो हमने डिजाइन किया स्ट्रक्चर, इन दोनों के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माने टोटल लोड डिवाइडेड बाय बियरिंग कैपेसिटी। तो ये हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन आ रहा है। सपोज 14 टन है हमारी बियरिंग कैपेसिटी और टोटल लोड है हमारा 10 टन, तो 10 डिवाइडेड बाय 14 जो वैल्यू आएगी उतना फाउंडेशन की विड्थ हो जाएगी। Again, remember height of the structure should be less than the height of the bench in either side. इस तरह से जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को मैं आपको मोटा मोटा बताया। अगर इनकी कोई डिटेल आपको और जानने की आवश्यकता कभी भी पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यू मे नोट डाउन माय फोन नंबर 9719220976. So that will be given to you in checkbook also. So this way, my time is over. If you want to place some questions, you may please. पहले तो मैं शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और हम लोग का ज्ञानवर्धन किया। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको कि इनका इतना जो ज्ञान है इतना ज्यादा है कि हम लोग को इनसे सीख लेनी चाहिए, और जो हम लोग इनसे सीख सकते हैं वो कोई किताबों में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका जो अपना एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस और जो हम लोग लिखा पढ़ी वाला है तो दोनों को मिला के, केवल एक किताब वाला ज्ञान नहीं है, इनका इसमें जो है एक्सपीरियंस भी है। अगर आप किसी का भी कोई भी अभी जो आज हम लोग की क्लास हुई है, किसी का भी प्रश्न हो, जैसे मेरे को थोड़ा आनंद कुमार जी एक्टिव लग रहा है थोड़ा से, क्योंकि इन्होंने अपने इंजीनियरिंग वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। तो मैं ये चाहूंगा अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी शर्मा जी बैठे हुए हमारे साथ में, इनसे पूछ सकते हैं। अगर प्लीज आपके लिए फोरम खुला हुआ है, अब आप अपने को अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि शर्मा जी हमारे से बहुत दूर हैं, आपके जो कांटेक्ट में ये हमारे ईमेल के माध्यम से भी रहेंगे, अपना जो इनका ईमेल आईडी है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और इनका फोन नंबर भी करा देंगे। और शर्मा जी देहरादून में रहते हैं, अगर कभी कुछ और फिर आगे भी इनके क्लासेस होते रहेंगे, इनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो इतना ज्ञान इन्होंने लिया है, इसका कम से कम इसको बांटना तो पड़ेगा ही हम लोग के साथ में, शेयर नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। तो अब मैं आप लोगों के पास फोरम खोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज। किसी का कोई प्रश्न है कि नहीं है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आप सभी को अभी जो शर्मा जी का इनका नंबर है तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। और अभी आपसे सभी से अनुरोध है कि अभी हम लोग आपके साथ में एक जो हमारा टेक्निकल का एक ग्रुप बना रखा है, उसमें हम लोग आपको अभी जो है अटेंडेंस का लिंक भी शेयर करने जा रहे हैं। तो सब आप अपनी अटेंडेंस जो है वहां पे जरूर मार्क कर दीजिएगा। और जैसी फीडबैक फॉर्म आपको हम लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है
जैसे ही हम लोग इसको आपको का फीडबैक का लिंक जो आपको शेयर करते हैं, तो करके अपने फीडबैक टाइमली भेज दीजिए, क्योंकि जो फीडबैक है वो हम लोग को आगे जो कंसर्न है उनको भेजने पड़ते हैं। जो समझ में क्या लाइफ ऑफ अभी आपने जो क्वेश्चन अपने हम लोग को भेजे हैं, वो एक एक करके हम लोग अभी शर्मा जी से अभी इनके पास में पास ऑन करते हैं। अरे बाबूजी आनंद कुमार जी, जहाँ तक वो डिपेंड करता है कि हमारी गली का इसके मुख्य कंपोनेंट के 90 से 2 सेंटीमीटर के बीच में गड्ढे खोदने हैं, 15 सेंटीमीटर डाल के 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर दी। तो एक गड्ढे की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। DSR में अगर आप जाएंगे तो ये पिट्स, नंबर ऑफ पिट्स के हिसाब से आएगा, क्यूबिक मीटर में नहीं है। तो जितने भी आपने ये पिट्स खोदे होंगे 10, 20 या 25, उतने पिट्स के हिसाब से इसका रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं DSR के हिसाब से। नंबर 2, जो सरफेस ड्रेसिंग है जो अप टू 30 सेंटीमीटर तक आपने क्लियर की है, उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। DSR से आप टेस्ट ले सकते हैं। तीसरे, जो आपने इसमें वुडन पोल्स लगाए हैं, डिपेंड करता है कि वुडन पोल की मार्केट में कॉस्ट क्या है, और अगर ये वुडन पोल्स आपके पास अवेलेबल है तो इनकी कॉस्ट कितनी होगी। मार्केट में जो कॉस्ट होगी, सपोज 150 पर पोल के आसपास रेट होगा या 200 के आसपास होगा। तो जितने हमारे पोल्स हैं उनको आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी नियर बाई बुशेस हैं, जो भी झाड़ी जंगल, उन सबको आपको रस्सी में वायर से बांधने के बाद उस बॉक्स के अंदर डालने। आई एम लिटिल बिट सॉरी कि मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में कोई डायग्राम नहीं डाल सका, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था। बट एनीवे यू कैन सी ऑल these diagrams in books और मैनुअल। तो इस तरह से एप्रन का भी इसी तरह से है। तो ये सब कंबाइन करके आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। Since you are engineer, so it is very easy job to you. ये कहना अच्छा नहीं होगा कि 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए पर स्ट्रक्चर है। You can calculate it. Number 1. Number 2, life. Normally, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर 3 साल तक काम नहीं करता, it means we have missed something. 3 साल के अंदर अंदर उसको अपना पर्पस सोल्व कर देना चाहिए। ये जो बैम्बूज हैं, ये 3 साल तक, जो हमारे पोल्स हैं, 3 साल तक सर्वाइव करेंगे। तो नॉर्मली 3 सीजन इसकी लाइफ होती है। बट जो बुशेज अंदर डालते हैं उनको पर ईयर चेंज करना पड़ेगा बिफोर मार्च, क्योंकि वो सड़ गल जाते हैं। एंड अगर आप सेल्फ स्प्राउटिंग स्पीशीज की बात करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां जहां आज आपने एक टहनी लगाई है, कल वहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हो जाए, तो दिस विल बी ए परमानेंट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसका मैं समाधान ना, फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज आप। ये हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो चंदन रॉय जी का है। ये कह रहे हैं एज पर रिकमेंडेशन फॉर डेवियन और ईदर मैसेंजरी चेक डैम, क्लियर हाइट शुड बी मिनिमम 1.5 मीटर और नॉट। क्लियर हाइट हो, किसकी क्लियर हाइट? चंदन जी बताइए। चंदन रॉय, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चंदन, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क डायरेक्ट। इंजीनियर चंदन,
You can unmute yourself and you can ask the question. Height of the water. Right? Height of the water. कितना Clear होगा? height of the water. Again, either simply check them. Clear height should be minimum 1.5 meter or not. Height of the water is. जहां तक चंदन मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपने कहा है कि केवीएन या मसंदी चेक डैम के पीछे 1.5 मीटर वाटर की हाइट होनी चाहिए। तो ये गलत है। डिपेंड करता है कि आपका टोटल वाटर यील्ड कितनी है और कितना ड्रेन आउट हो रहा है, कितना डिस्चार्ज है, अकॉर्डिंग क्या साइज गली का है उसके हिसाब से आप इन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो 1.5 मीटर में आप इसको 20 सेंटीमीटर भी फोल्डिंग कर सकते हैं, पीछे 30 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, एंड अप टू 3 मीटर इज नो प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक दैट दिस वाज योर क्वेश्चन। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर गली के अंदर फाल 1.5 मीटर होना चाहिए तो तब एक गेबियन और ये लगना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का आपका प्रश्न है तो जो फाल है हमारा अप टू 3 मीटर तक हम नॉर्मली स्टेप स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। जो हमारा ड्रॉप स्ट्रक्चर है 1.5 मीटर का नॉर्मली बनाते हैं, तो डबल स्टेप्स में अगर बना दे तो 3 मीटर तक ये जाता है। उसके बाद अगर जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर ये स्ट्रक्चर इकोनॉमिक नहीं रहता। उस केस में फिर हम शूट स्पिलवे को चूज करते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड। Any further clarification you want, please ask. तो चंदन जी आपको चाहिए, आप तो ये हेडक्वार्टर में ही है, आप शर्मा जी से तो कभी भी मिल सकते हैं, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए आप। And better you come to the Irish right now. चंदन जी आप एरिस में आ जाइए, फिर यहाँ से बताइए क्या है। Okay. It's okay. Only some numbers. So the question is, Thanks a lot. What I say? But you understand मुरुगेशन जी फ्रॉम ऊटी, आपका कोई क्वेश्चन है? आर यू हैविंग सम क्वेश्चन टू आस्क? इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन देन यू आर अनम्यूटेड। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो मुरुगेशन? हेलो। Yes sir, yes sir. How are you? Fine sir. Oh, So do you have some question to ask? No sir. Clear. Sir is clear sir. thank you, Okay, thank you. now that's okay. Thank So you. if- Sir is my mentor sir. Sir is my mentor sir. हेलो लखन अहीर जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद लखन सर। अहीर जी, हेलो। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो हाँ जी, कौन है? ये किस में आ गया? सब एक साथ अनम्यूट मत कीजिए, एक एक करके पूछिए। या तो अपना हैंड जो है रेज कर दीजिए, हम लोग उसी को फिर अनम्यूट करेंगे। लखन अहीर जी, आनंद कुमार जी, आपका भी अनम्यूटेड है, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू वेरी मच सर, हो गया। हो गया, आपने पूछ लिया था तो? हाँ yes sir हो गया, आई हैव अंडरस्टैंड और योर क्लियर क्वेश्चन। हाँ, कोई नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो शर्मा जी हम लोग के साथ में यस सर से अच्छे रिलेटेड है सर से। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी हम लोग जो है, एक चीज आपसे क्लियर कर रहा हूं मैं कि हाँ, अगर सर। कोई भी हमारे यहाँ पे
जितने भी हमारे जितने भी टेक्निकल जो हैं वो जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ में, अगर कोई भी अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज है तो आप अगर कोई अपना लेक्चर अगर अपने उस पर देना चाहते हैं तो आप लेक्चर दे सकते हैं। तो आप अगर कोई अपना फील्ड का स्पेशलाइज कोई फील्ड है उसमें अगर कोई लेक्चर देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी फ्री हैं और आप हम लोग को अपना लेक्चर का जो टॉपिक है वो भेज सकते हैं, तो हम लोग आपका भी लेक्चर इसमें आगे अरेंज कर देंगे। और जहां तक कि हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि आप लोग कोई अपने यहाँ का वीडियो फिल्म या कोई भी अपना 2-2 पेज का कुछ बना के भेजिए, तो अभी हम लोग को केवल एक जो वाट्सएप सेंटर है वहां से मिस्टर मायावंशी जी जो है वो उन्होंने जो है अपना एक वीडियो भेजा था, उसके अलावा हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो मायावंशी जी है क्या यहाँ पे? मायावंशी जी है क्या यहाँ पे? सर एक्चुअल में क्या अभी सर लाइट कटी है बासद में, अभी प्रॉब्लम हुई थी और डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा नहीं अभी दिख तो रहे थे मेरे को, अभी आप उसमें अगर कुछ आगे अगली बार आपका जो आपने वीडियो भेजा था मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आप जैसे वीडियो बनाया था आपने बहुत अच्छा, आपका जो एफर्ट था बहुत अच्छा था, लेकिन आप उसमें एक काम कर सकते हैं जो अभी हम चाह रहे थे कि आपने जो वीडियो है वो तो शूट कर दिया, लेकिन उसमें क्या है क्या नहीं है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है ना। अगर आप उसके पीछे से कुछ थोड़ा सा कुछ बोल सकें, कुछ अपना कुछ बताएं उसको कि क्या है, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, शॉपिंग में जो हम लोग का है वहाँ पे क्या मतलब जो जो आप उसको बताना चाहते हैं वहाँ पे आपने कुछ नहीं बताया, केवल एक वीडियो भेज दिया है। तो मैंने सोचा था कि आपको वीडियो प्ले कर देंगे, आप पीछे से बताएंगे उसको, तो अगर हो सकता है तो आज अगर ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार इसको करेंगे। मायावंशी जी सुन रहे हैं मेरे को? सुन रहा। अब इस बार नेक्स्ट टाइम कर देंगे आपका, ठीक है? आप एक और कुछ बना के भेजिए, फिर देखते हैं उसमें हम लोग आगे सबको प्ले करने में आसान रहेगा वो। तो सभी जितने भी हमारे टेक्निकल से सभी से बोलता हूँ आप जो अगली बार कोई भी अपनी तरफ से भी कोई शेयर करना चाहता है, कोई लेक्चर देना चाहता है, कोई सबका हो सकता है, सबका अपना अपना जो एक्सपर्टाइज है किसी की अलग अलग फील्ड में है, तो जो जिसमें भी अपना एक्सपर्टाइज है उसमें अगर आप अपना लेक्चर देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप हम लोग के पास अपना जो टेक्निकल ग्रुप में या मेरे पास में जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर आप ये भेज सकते हैं। शर्मा जी का ईमेल आईडी और फोन नंबर हमने शेयर कर दिया है, अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर दिया है। तो इसी के साथ आज का जो हम लोग ये लेक्चर प्रोग्राम था, ये आज का लेक्चर शर्मा जी द्वारा था, तो इसको आज हम लोग खत्म करते हैं। और अंत में मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ नया कुछ सब सीख सकें। और इंजीनियर एस.क. शिरमाली जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं AKME सेल की कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो जो हमारे साथ में हमारे शर्मा जी अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास में आए। इनको आना ही पड़ता हमारे पास में, क्योंकि हमारे ऐसे इनके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, जो भी बता रहे थे समझा रहे थे कि इधर फोर्स लेके हम लोग को इधर सरका देगा कि 10 मीटर कहाँ भागा आपका, तो इनको हम लोगों ने फोर्स लगा के उधर से घर से इधर की तरफ बुलाया है। तो सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। अपना जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है हमारे सुरेश चौधरी जी, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने अपना कीमती समय अपना इसमें भी लगाया कि भाई अपना जो कोर्स कंटेंट है वो कैसे बनाया जाए। फिर हमारे हरविंदर सिंह भाटिया, एच.एस. भाटिया, ज्यादातर सभी लोग एच.एस. भाटिया के नाम से जानते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने भी अपने पूरे एफर्ट्स लगाए इसको। आज ये कार्यक्रम जो है शर्मा जी को पकड़ के वही पता नहीं आज सुबह से घूम रहे थे शर्मा जी को पीछे पीछे कि कहाँ से पकड़े जाएंगे। और बाकी सुरेंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसने अपना जो हमारे जो अटेंडेंस लिंक है सभी शेयर किया है सभी के साथ में। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी लोगों का है जो आप लोगों ने इसको अटेंड किया है प्रोग्राम को, और सब बिल्कुल चुप बैठे रहे इसमें। अब क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछे ही हैं, और चंदन ने तो खासकर अपना क्वेश्चन भी पूछे, और अभी शायद अभी यहाँ आने के मूड में भी हमारे पास में। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम क्लोज करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।